Uh, Instruction for the candidate. This task is a structured discussion which assesses the following clinical skills: patient safety, information gathering, communication with patients and relatives, applied clinical knowledge. Mrs. Asia, 60 years of age, presents to gynae OPD with complaint of something coming out of vagina for past two years. You will have 10 minutes to have a structured discussion on how you will manage this patient from now on with the examiner. Wait a minute. Just a minute. So, shall we start? Yes, sir. Okay. Assalamu alaikum. I will जी introduce. Okay. Assalamu alaikum. I will. जी मैम नहीं बेटा this is a structured discussion. Yes, sir. I will introduce and greet the patient, confirm the details given in the scenario, take her biodata, and will ask her for how long she is married, her parity, her occupation, and her educational status, and her menopausal status. Then I will ask her whether the mass is reducible or not. Does it comes out after long standing or coughing. Then I will ask the complaint of bleeding, pain, or discharge. Any complaint of urinary complaints like hesitancy, frequency, urgency, or any leaking after coughing. Any complaint of any bowel complaints, or does she has to reduce the mass for defecation. Then I will ask if she is sexually active. Then I will ask any complaint of dyspareunia. Then I will ask her about history of chronic cough, like also tuberculosis, or history of asthma, any constipation, or prolonged any history of weightlifting, or any mass in the abdomen. Then I will take her. Then I will take her past obstetrical history, which includes any her parity, any parity, a number of any difficult any history of good sized babies, any difficult vaginal delivery, or any history of prolonged labor, or use of forceps or vacuum. Then I will ask her what treatment has she taken till now, and what is the effect on her quality of life. Then I will quickly take her gynae history, which includes contraception and pap smear, and any history, her history of her past medical history, diabetes, hypertension, ischemic heart disease, any renal disease in her family, or any history of surgery, or any history of smoking, drug allergies, any drug addictions, or how is the sport at her home. So should I proceed? Should I proceed? जी जरूर बेटा. Then I will move on to the examination. I will measure her weight and height and will calculate her BMI. Then I will do her vitals, her look for signs of anemia, jaundice, then thyroid examination, and I will examine her breast and cardiovascular examination. Then I will do her abdominal examination for any scars, pulsations, stria, and any patency of the hernial orifices. And then I will palpate the abdomen for any tenderness, any mass, or any visceral. Again, if anything positive, then I will further elaborate that. Then I will do her local pelvic examination. I will inspect the vulva, and I will inspect the mass and its presence of the cervix, or I will look for ulcer if present, and will look for if it's present. Then I will note its size, margins, and the base, any bleeding or discharge present. Then I will reduce the then I will palpate the mass for the presence of the uterine fundus. I will take pap smear, and I will reduce the mass, and I will look for the size of the uterus, mobility, tenderness, and fullnesses of the fornices. Then this examination was done in dorsal position. Then I will make a Sims position and will look for cystocele and rectocele. And how will you classify this, perhaps? Sir, I will classify according to the Beecham classification system. If
if uterine fundus is present outside the vagina, then it will be prosidential, and if it's not palpable, then it will be second degree prolapse. Okay. Is there any other classification you can think of? And Yes, sir. There are different classification systems available, including Beaton Walker and PopQ classification system. okay. And which one of them do you prefer and why? Sir, this one is easy. That's why we use it. But the for quantification, PopQ can be used for the quantification of the prolapse, as there are there are less inter observer differences. And how do we quantify them in POP? Sir, we quantify according to the scale, which is sir, different landmarks, which includes there are 9 landmarks. Some are which includes anterior vaginal wall landmarks and posterior vaginal wall landmarks, and there are then genital hiatus, perineal body. So first, so should I have to explain the whole procedure? If you want to. Oh, sir, I've not prepared that. Okay. Okay, suppose she's a second degree prolapse. How will you manage this patient then? Okay, sir. Sir, first I will ask for investigations, some baseline investigation for the general well-being of my patient, which includes complete blood count with date for hemoglobin grams per deciliter, platelets, and total leukocyte count. Then blood group and Rh factor, blood sugar random, or and hepatitis B surface antigen, anti-hepatitis C antibodies. Then midstream urinalysis with date for proteins, leukocyte, and pus cells. And then transvaginal, then pelvic ultrasound for the size of the uterus, endometrial thickness, any adnexal or uterine pathology. Then coming to the management, first I will complete my missing investigation. Then I will counsel the patient regarding my diagnosis of a second degree uterovaginal prolapse. I will tell her uh, uh, due to the weakness of the pelvic floor with increased age and deficiency of the estrogen, this conditions happens. Then I will offer my support to the patient, and I will tell her I will involve multidisciplinary team. I will tell her I will discuss with her my different management options available for her. For I will tell her if she has not. I will tell her there are some conservative management. First, I will tell her about lifestyle modification, which includes reduction in her weight, and if she smokes, and quitting smoking, and changing her lifestyle, like prolonged standing or and I will tell her about pelvic floor muscle training, which includes contracting her pelvic floor, just like holding the urine. And then I will tell her different management options available, which includes conservative management options, which includes a pastry option if she has not tried before. I will tell her that it is a temporary option, and she has to change it after every 6 months, and there is a risk of expulsion, and there is a risk of infection or ulcer. Then if my patient, my management will depend upon her wishes, her effect on her quality of life, and her then I will give, if she wants definitive treatment option, then I will tell her the option of vaginal hysterectomy with interior posterior repair. So should I proceed further? We'll try a bit, almost about 9.5 minutes. Okay, we're almost done. Done. Yes. Okay. Okay. Acha,
How do you think you performed? Sir, I tried my best, but you tell how did नहीं I? नहीं वो तो of course everybody tries their level best. लेकिन how do you think you performed? Sir, it was okay. It was okay. तो अगर let's suppose नंबरिंग होती 10 तक तो आपके इसमें कितने नंबर आने चाहिए? सर अब आप बता दें प्लीज। मुझे तो पता है बेटा मैं तो आई मार्क्ड यू with हमारी की है उसमें तो मैंने आई मार्क्ड यू सर 6 or 7? 7। 6 7 ओके। अच्छा पहली बात मुझे आप ये बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्कशन जो आपको दी गई थी ये इसमें इंस्ट्रक्शंस उसमें क्या लिखा हुआ था? कैन यू सर रीड दैट? सर समथिंग कमिंग आउट ऑफ वेजाइना ओके। फॉर 2 years। हम्म पेशेंट इज 60 years। उसके नीचे और क्या लिखा हुआ था? सर You will have 10 minutes to have a structured discussion on how you will manage this patient from now on with the examiner. जी सर। What does that mean? सर इसमें सारा मैनेज करना था थ्रू आउट। Yes. और ये इंग्लिश का वर्ड है डिस्कशन, स्ट्रक्चर डिस्कशन। व्हाट डू यू मीन कि उससे क्या मतलब होता है? सर इसमें we have to answer the questions asked by the examiner। सो डिड आई आस्क यू कितने क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपसे? सर आपने 2-3 क्वेश्चंस पूछे। ओके। बेसिकली द आइडिया इज दैट जब आप ये स्ट्रक्चर डिस्कशन कर रहे होते हैं विद द एग्जामिनर देन डिस्कशन जो है इट हैज टू कम फ्रॉम बोथ वेज। उसमें आपने जैसे ही वो प्रोलैप्स पढ़ा या पहले आपको फुली पहले पता ही था कि ये प्रोलैप्स वाला स्टेशन है उसमें आपने वो पूरा चैप्टर स्टार्ट करके यू स्टार्टेड ऑफ विद दैट। इजंट दैट सो? यस सर। पर यू नीड टू गिव टाइम जब आप ये स्टार्ट करते हो कि जी के शुड आई स्टार्ट विद द मैनेजमेंट प्लान या आप यू गिव टाइम फॉर द एग्जामिनर टू स्टार्ट ऑफ कि जी वो करें। और ड्यूरिंग दिस टाइम बीच में आपके इसमें बिकॉज आई एम श्योर कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम वो बीच में ब्रेक भी नहीं ली कि जिसमें हमने वो काइंड ऑफ मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकूं। सर मैंने इसलिए पूछा था शुड आई प्रोसीड के अगर क्वेश्चन होगा तो वो फिर क्या होगा? सर वो एग्जामिनर पूछ लेते हैं अगर क्वेश्चन हो तो। अच्छा कुछ एग्जामिनर पूछ लेते हैं कुछ नहीं भी पूछते हैं। जी सर। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू करने से पहले जब भी स्ट्रक्चर डिस्कशन है देखो आपकी 3 4 किस्म के तो हैं स्टेशन। एक वो है जिसमें आपने जाके स्किल परफॉर्म करनी है, जी सर। किसी किस्म की उसमें कोई डमी है या कुछ और है या वट एवर गिवन आपने उसको लेके उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। एक है जिसके अंदर आपने कोई रोल प्ले होता है कि उसके साथ इंटरेक्ट करना। एंड दिस थर्ड वन इज फॉर दिस प्रॉब्ली द इंटरेक्शन विद द एग्जामिनर जिसमें आपने थोड़ा बहुत उसको भी अपॉर्चुनिटी देनी है कि हमने आगे जाके बात किस तरह कवर आपने सारा कुछ किया। The only thing which you missed out on all this history and सारा examination and इसमें was probably would be अगर मैंने वो नोट्स करके देखे एक तो वो जो एक्सरसाइजेज हैं उनका स्पेसिफिक नाम है सर मैंने कहा कीगल 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 एक्सरसाइजेस। ओ सर। यस। तो उसमें हमें उसकी डिटेल में जाना है नहीं जाना हो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि जब वो आपको एग्जामिनर किस तरह लेके जाता है। ठीक क्योंकि इस टाइम एग्जामिनर जो है इसमें आप टेक्निकल टर्म्स भी बोल सकते हो और उसमें आप उसके हिसाब से मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी बात कर सकते हो तो टू मेक योर टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर। दूसरा जो आपने इसमें जो मिस किया है वो उसमें यूरिनरी कंप्लेंट्स में इसकी स्ट्रेस और जीआई और अगर वो होता है और या एग्जामिनेशन में भी अगर आप देखते हो कि जो अगर वो है
तो फिर प्रॉपरली आगे इसकी सिस्टोमेट्री हमने करनी है कि नहीं करनी, वो उसकी डिस्कशन के पॉइंट्स हैं अगर हमने उसमें जाके जाना। तीसरा, जब आपका इतना सेकेंड डिग्री और अगर आप उसमें जाते हो अपना पीओपी वाली क्लासिफिकेशन में, तो अगर वो स्टेज 4 तक आती है ये प्रॉब्ली प्रोलैप्स, फिर उसमें आपकी रीनल स्टेटस को भी ज़रा हमें एसेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वंस दे कम डाउन सो मच, तो उसमें आपके जो यूरेटर्स हैं दे गेट किंक्ड, एंड वंस दे गेट किंक्ड तो प्रेशर की वजह से पीछे हाइड्रोनेफ्रोसिस या अपना ये यूरेटर की और इसकी रीनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसको वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ। जी सर। ठीक, ये सारा कुछ अगर होगा देन इट काइंड ऑफ कंप्लीट। और इसमें ऑफ कोर्स जब आप करते हो इन्वेस्टिगेशन की, जब आप बात करते हो, तो अगर आपने रेस्पॉन्स की सर्जिकल प्रोसीजर करनी है, तो यू विल से कि दीज इन्वेस्टिगेशंस विल बी डन बाय द फॉर एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बिकॉज शी इज 60+ ईयर्स ऑफ एज, और उसकी फिटनेस लेना भी उसके लिए प्री ऑप के लिए उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी रीजन अगर वो प्लस को कार्डिक पेशेंट है या कोई और है, या शी कैनॉट लाई डाउन स्ट्रेट, ऑर्थोपनिया है, तो फिर उसकी सारी इवैल्यूएशन फॉर हर मेडिकल स्टेटस भी अगर होंगी, अगर फिटनेस आपको एनेस्थीसिया वाले देंगे, फिर हम उसकी बात करेंगे। अगर हम एनेस्थीसिया वाले ही कह सकते हैं कि जी कि शी इज़ नॉट फिजिकली फिट टू गो फॉर अंडरगो दिस सर्जरी, फिर देन वी मूव ऑन कि जी फिर हम उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किस किस तरह कर सकते हैं विदाउट डूइंग दिस। और अगर वो भी नहीं है, तो फिर देन प्रॉब्लम, अगर पेशेंट बहुत डिस्ट्रेस्ड है, तो ऑफ कोर्स लीफ आउट सर्जरीज, या वो जो आपकी होती है लाइना वजाइना को बिल्कुल हम क्लोज कर देते हैं फॉर दिस पर्पसेस, फिर वो दैट इज एन ऑप्शन कि हमने वो किस तरह करनी। अदर देन दैट आई थिंक अपने मतलब है कि जो हमारी बुक में सारे पॉइंट्स लिखे हुए, मोर और लेस यू हैव काइंड ऑफ कवर्ड दैट, वो ठीक। और तीसरा इसमें एक और थी, ऑफ कोर्स हाँ, मेरा ख्याल है कि एट योर स्टेज व्हेन यू गो फॉर एग्जाम, आपको पीओपी की जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी सी आपको डिटेल में आनी चाहिए, कि इट कैन बी डन, और ये हो सकता है कि एक पूरा स्टेशन वो इस पे बना के दे दें। रूटीनली व्हाट आई थिंक कि जो ये आपकी है कोलैप्स वाला स्टेशन, इट मोर और लेस अगर आता भी है, तो ये आ जाएगा आपको ऑन डमीज फॉर एग्जामिनेशन के लिए। जी इसी सर। पे दे विल आस्क यू कि जी अगर आपने पीओपी करना है, तो आप मेजरमेंट किस तरह करते हो, कौन सा पॉइंट लेते हो, ए बी और ए और सारे जितने पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उस तरह हाउ डू यू मेजर दैट। तो फॉर दैट आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि वो है। उन्होंने डमीज कॉलेज वालों ने ऑर्डर तो की हुई हैं, होपफुली प्रॉब्ली आई डोंट नो कि जो भी नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उसमें वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन दे आर ऑन देयर। तो इसलिए वो दैट इज वन पोर्शन इन ऑर्डर आउट ऑफ ऑल दिस यू कैन काइंड ऑफ। अदर देन दैट आई थिंक कि कवरिंग और जो आपके टाइम था और उसके हिसाब से यू ऑलमोस्ट डिड ओके। जी आई सर। प्रॉब्ली यू इसमें जो है ना अराउंड, अगर ये 2-3 पॉइंट्स अगर मिस भी हो जाते हैं, तो आई गिव यू बिटवीन 5 and 6 इसमें आपके प्रॉब्ली यू गेट द ग्रेडिंग आउट ऑफ ऑल दिस जी सर। करते। ठीक, अगर इसमें कोई और क्वेश्चन है तो बताओ आप। सर ये जो हमने बोनी स्ट्रेस टेस्ट करना है, हमने स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करना था, तो हम्म, उसमें जब हम एक दफा प्रोलैप्स को डॉर्सल पोजीशन में जब रिड्यूस करेंगे, तब हम कहेंगे कि तब उसके लिए तो हमारा ब्लैडर फुल होना चाहिए ना। तो ये चीजें आप बताओगे ना, क्योंकि ये तो आपकी ओरल जमीन है ना, कि जी फॉर दैट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस अपना क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस ही देखनी है ना, बाकी तो जीआई तो आप हिस्ट्री में पूछोगे उससे। जी सर। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए शी नीड्स टू हैव अ फुल ब्लैडर, और पहले फुल ब्लैडर में उसको पहले ही डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, फिर जनरली पेशेंट को आस्क करते हैं कि जाके अपना ब्लड एम्प्टी करके आओ, और फिर हम उसका बाकी एग्जामिनेशन कंप्लीट करें। जी सर। उसके में भी वो करके जी उसको you separate the introitus, and then you ask the patient with a full bladder to cough, and if you can see urine coming out, तो उसमें फिर से करेंगे। लेकिन वो आपने हिस्ट्री में भी मिस किया हुआ था कि जी उसकी कोई, आपने इसमें जो यूरिनरी है उसमें हेजिटेंसी और वो सारा कुछ पूछा था,
लेकिन नॉट दिस, लीकेज का नहीं पूछा था। सर मैंने पूछा था कफिंग के साथ लीकिंग है कि नहीं है। फिर आपने इतनी तेज पूछा था कि वो मैं नोट नहीं कर सका, क्योंकि मैंने सारे जी पॉइंट्स आप, और अगर एग्जामिनर ने नहीं सुना तो फिर उसके नंबर नहीं मिले। जी ठीक। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। हमारे जो एग्जाम में सर हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें तो जी लिखा होता है स्ट्रक्चर डिस्कशन में कि टेक द रिलेवेंट हिस्ट्री देन एग्जामिनेशन एंड फर्दर डिस्कशन या फर्दर रिप्लाईज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी रिप्लाइड बाय यू आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। तो जी सर इसमें तो सिर्फ डिस्कशन लिखा था, तो फिर इसको हम कैसे स्टार्ट लेते? बेटा, दोनों चीजें फर्क है ना, इसीलिए तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी बड़ी जरूरी है। अगर उसमें लिखा हो कि जी टेक अ फोकस हिस्ट्री और इसमें आगे चलोगे, या डिस्कस द फोकल पॉइंट्स, तो फिर आप उस पर स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। then you need to manage that session according not to you but according to the instructions which is given to you। अगर इसमें ये लिखा होता जिस तरह आप कह रहे हो, फिर she would have been okay। मेरी बात समझ आई कि नहीं? सर वो मतलब बताना। हम तो जी वहां पर सर हम इस चीज पे यूज टू हैं कि वहां पे लिखा हुआ होता है टेक द रिलेवेंट हिस्ट्री, इसमें तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डिस्कशन। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, तो फिर डिस्कशन में मतलब क्या कैसे स्टार्ट लेना चाहिए? बेटा, डिस्कशन में यही होगा ना कि जी कि आपको जो मुझे क्लिनिकल सिनारियो लेट्स सपोज ये दिया हुआ है, एंड आगे से एग्जामिनर आपसे बेसिकली पूछेगा जो इसमें आगे क्वेश्चन दिए गए थे। मुझे जो इसमें एग्जामिनर्स को इंस्ट्रक्शंस जो दी हुई, इसमें लिखा हुआ था व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू लाइक टू आस्क फ्रॉम द पेशेंट फर्दर ऑन। उसमें फिर आपने फिर वहां से स्टार्ट कर देना, लेकिन यू नीड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एग्जामिनर टू आस्क यू द क्वेश्चन। ठीक है सर जी, ठीक है। अगर उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस ये दी हुई हैं कि जी यू अपना टेक अ रेलिवेंट हिस्ट्री या डिस्कस द रेलिवेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस पेशेंट, तो फिर आप वहां से स्टार्ट कर दोगे कि एज माय पेशेंट इज दिस दीज आर द पॉइंट्स। इसमें पेशेंट लेके पूछूंगी कि जी आप मेनोपॉज हुई, रिड्यूसिबल हुई, ब्लीडिंग हुई, पेन हुई, क्या हुआ, एंड व्हाई शी इज हियर नाउ आफ्टर 2 years और 3 years। अब क्या कंप्लेंट बढ़ गई है कि कम हो गई? और इसमें जी हाँ, ठीक। एक और बात भी हमने भूल गए, क्योंकि शी इज अ क्रॉनिक पेशेंट ऑफ प्रोलैप्स, तो कोई फर्दर पहले इसने ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं लिया हुआ। देयर वाज अ पॉइंट है कि जिसमें उसने पहले पेस्ट्री यूज की थी, और पेस्ट्री जो है वो ये एग्जामिनर बताएगा वाज काइंड ऑफ वो प्रोलैप दोबारा अपना पुल आउट हो गई थी। तो क्या हम दोबारा करेंगे, दोबारा पेस्ट्री इस्तेमाल करनी है कि सर्जरी करनी है, कि हाउ विल यू प्रोसीड? सर वैसे ये जो हमारे एग्जाम में स्टेशंस आए थे ना, उसमें उन्होंने ग्रेडिंग रखी हुई थी, ग्रेड स्टेशंस बनाए हुए थे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कर रही थी। और बेटा, एक तो कोई आया था उसमें टीचिंग थी पॉप क्यू पे, जूनियर को मतलब उस पे पढ़ाना था। इस तरह से हमारे स्टेशंस आए नहीं, थे। देखो बेटा, हर स्टेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप उसमें क्या पूछना चाहते हो। वो जो आपकी जी सर। स्टेशंस थे उसमें बेसिकली उन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉप क्यू की क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। दैट इज मैंडेटरी कि उसका अलहदा एक स्टेशन बनता है फिर, चाहे उसको वो टीचिंग में ले जाएं, चाहे वो सर्जिकल स्किल में ले जाएं उसको, चाहे वो डिस्कशन में ले जाएं। अगर इस दिस स्टेशन वाज नॉट मेंट कि सिर्फ पॉप क्यू की क्लासिफिकेशन के, उसके सर्टेन पॉइंट्स थे बीच में कि वो डिस्कस ये करती है। उसने एग्जामिनर में सेक्शन दी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि डिस्कस विद द पॉप क्यू क्लासिफिकेशन। वो इनको नहीं भी आती थी, लेकिन स्टिल शी मैनेज। बाकी इसलिए जो इनके नंबर कम हुए हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि वो उसका एक स्ट्रक्चर डिस्कशन के अंदर अगर उसके 2 नंबर थे आउट ऑफ 10, तो वो 2 में से इसका 0 आके फिर आगे चला गया। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि बाकी सारा उनका जो है वो नलीफाई हो गया। लेकिन अगर ये ठीक है स्टेशन सर। उसमें पॉप क्यू की टीचिंग होती या कुछ और चीज होती, फिर उस इनके नंबर और कम हो जाते, क्योंकि हमने तो नंबर मार्क करने हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्ड की विच इज गिवन टू अस। इसमें हमारी अपनी चॉइस नहीं होती कि अगर हाँ जी उन्होंने एग्जामिनेशन के ये 8 पॉइंट बताए हैं तो इसके आपको 1 या 2 नंबर मिल जाए। अगर इसके एग्जामिनेशन सॉरी हिस्ट्री में ये पॉइंट बताए हुए हैं तो ये मिल जाएगा। अगर उसने लेस पर कोई स्पेसिफिक चीज होती है, जैसे
ये स्ट्रेस और ये GI आ जाती है, उसका उन्होंने एक अलग आधा नंबर दिया होता है। तो अगर जिस तरह से आप मार्क करते रहते हो उसी हिसाब से फिर हम उसको टिक करते रहते हैं। ठीक है सर। सर मुझे ये भी बताएं सर, टीवीटी हमारे पाकिस्तान में हो रही है? टीवीटी प्रोसीजर? अवेलेबल तो है बेटा, TVT इज अवेलेबल, मंगवानी पड़ती है। अब वो करते कितने लोग हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। और सर अगर किसी का मैश इरोजन हो जाता है तो हमें उसमें पेशेंट को किस तरह से काउंसिल करना चाहिए कि हम पूरा मैश निकालेंगे, या जो पार्ट उसका निकल आया है बाहर उसको निकालेंगे, या जो एब्डोमिनली हमने रखा है तो उसको पूरा अंदर से निकालना पड़ेगा? क्या कहेंगे, हम क्या वो करेंगे डिपेंड इसमें? वो डिपेंड अपॉन कि जो उसकी इरोजन कितनी है। ये जो आपने तीनों बातें बताई हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, और कई बार हमें कंप्लीट निकालना पड़ता है, और कई बार जो रोड वाला पार्ट है सिर्फ उसको कट करके आप छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बार सर ये रोड क्या, हो जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ही लंबी है, और फिर उसकी सर्जरी भी काफी लंबी। दीज थिंग्स अगर हैव टू सर बी। सर अगर किसी का एब्डोमिनली हमें निकालना पड़े, फिर उसके बाद फर्दर उसको क्या मतलब हम प्रोसीजर करेंगे कि उसका फिर ये कंप्लेन सही भी हो जाए? फिर आप मुझे बता दो ना इसके अलावा ऑप्शंस क्या क्या हैं। सर मुझे तो नहीं समझ आया, इसकी मैंने पूछा। फिर आपकी वो इसकी बर्च कॉर्पस सस्पेंशन हो जाती है। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस यू कैन यूज, जिसमें आप उसको जाके कर सकते हो। लेकिन जब आप वहाँ पे सारा कुछ ये कर देते हो, एक तौर पे आमतौर पे वहाँ पे इतनी ज़्यादा एडिशंस होती हैं कि वैसे ही वो ब्लैडर जो नेक है वो एलिवेट हो जाती है, तो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आते। तो अगर सिर्फ मैश भी निकाल दिया जाए, जनरली इट वर्क्स। तो पहला काम तो यही होता है कि सिर्फ उसको निकाल दें, और लेट्स सी कि उसके सिम्टम्स बेहतर हैं कि वैसे ही हैं कि क्या है। अगर वो ठीक रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दोज एडिशन फॉर्मेशन, फिर देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अदरवाइज फिर जो बाकी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका कैली है, जिसमें आपकी अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, और अगर आपका बर्स्ट कॉर्पस सस्पेंशन है, फिर कर सकते ठीक है सर। ठीक। एनीथिंग एल्स बट। सर अस्सलाम सर ये वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर स्ट्रक्चर डिस्कशन के अंदर तो केस डिस्कस कर रहे होते, पेशेंट नहीं होता, तो उसमें हमें ये कहना है कि आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट एंड टेक द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पेशेंट। नो नो, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वो डिस्कशन है बेटा, उसमें उसके नंबर नहीं, इंट्रोडक्शन के उसके नंबर नहीं। आप सिर्फ ये और जरूर कर सर सकते हो, हाँ एक सेकंड बेटा, उसमें आप ये जरूर कह सकते हो कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन की है उसको मैं वेरीफाई जरूर करूँ। सर और दूसरा ये कि जब प्रोलैप्स मतलब प्रोलैप्स का केस है, इसके अंदर पेशेंट को अगर जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा करना कंपलसरी है, या सिर्फ हमें जो है वो फोकल एग्जामिनेशन करना है इसके अंदर? डिपेंड अपॉन कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई ऑन द पेशेंट, उसके हिसाब से फैसला होगा। ओके। इसीलिए वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे वुड लाइक यू टू जस्ट डू अ एग्जामिनेशन ऑफ कोलैप्स के लिए, यू हैव टू कंप्लीट एग्जामिनेशन। सर एक सामने सर एक क्वेश्चन है। जी सर ये अगर पेशेंट है 30 इयर्स की और थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैप्स के साथ है, और अभी फैमिली उसकी, हम तो पहले यही ऑप्शन देंगे कि आप पहले फैमिली कंप्लीट करें, देन वी विल गो फॉर द सॉरी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। सॉरी बेटा, सॉरी क्वेश्चन रिपीट करो अपना। जी सर, अगर पेशेंट है 30 इयर्स की विद थर्ड डिग्री हम्म। यूवी प्रोलैप्स, और 30। ओके। जी, और उसमें सर जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में अगर हम उसको पहले स्लिंग ऑफर करेंगे या मैनचेस्टर ऑफर करेंगे? बेटा मैनचेस्टर इज ऑफर्ड व्हेन देयर इज जनरली सर्वाइकल लेंथनिंग, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यस सर। मैनचेस्टर का जो स्टेप्स जो है ना, उसमें बेसिक एम्पुटेशन ऑफ सर्विक्स है। दिस इज डन इन दोज केसेस मैनचेस्टर जहाँ पे सर्वाइकल लेंथनिंग होती है। अगर उसकी अपना सर्वाइकल लेंथनिंग नहीं है, नॉर्मल सर्विक्स है, तो उसमें मैनचेस्टर विल नॉट हेल्प। और मैनचेस्टर जनरली अब इज आउट ऑफ फेवर, कोई बहुत ज्यादा नहीं किया जाता। मुझे तो खुद ये सर्जरी जो मैनचेस्टर वाली है काफ़ी पसंद थी, हमने बहुत की है, नॉर्मली इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। लेकिन इनके रिजल्ट्स उनमें अच्छे होते हैं जिसके अंदर आपकी सर्विक्स की लेंथ लंबी हुई हो, जैसे मीनोपॉजल
यूट्रस के अंदर होगी। फिर आप उसको एम्पुटेशन करते हो और साथ उसके यूट्रस सर्कल को जब आप टाई करते हो, देन द यूट्रस की थोड़ी सी सपोर्ट के लिए देन इट गोes। अगर वैसे 3rd डिग्री उसका प्रोलैप्स है विद नॉर्मल सर्विस, फिर आपके जो दूसरी सर्जरीज हैं सारी इसकी प्रोलैप्स की सर्जरी, देन दैट इज द अपना क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल दैट, प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है सर, हम इसमें स्लिंग भी दे सकते हैं ना, ऑफर कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, वो है ना उसमें ऑप्शन। ठीक सर, थैंक यू। ओके सर एक सवाल था। जी बेटा। सर वालेकुम। सर अब जैसे ये पेशेंट जो है 60 ईयर ओल्ड पेशेंट थी और 2nd डिग्री प्रोलैप्स, तो जैसे मैनेजमेंट मतलब जैसे डेफिनेटिव इसके लिए जो यही बेटर था कि वेजाइनल हिस्टेक्टोमी हम बोलते, तो फिर भी हम सारे ऑप्शंस ही स्टार्ट करेंगे जैसे इन्होंने किया था, जैसे यस पेसरी। देखो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आफ्टर इवैल्यूएशन के उसके बाद, लेकिन आपने अपने पेशेंट को ऑप्शन सारी देनी है। ऑप्शंस का तरतीब आप अलहदा कर सकते हो कि जी इफ शी पेशेंट रिक्वायर्स टू फॉर हर कि जी डेफिनेट ट्रीटमेंट इज बेटर और एनेस्थीसिया के लिए वो फिट है, देन प्रॉब्ली एंटीरियर एंड अपना सॉरी वजाइनल स्टेक्टमी विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर इज एन ऑप्शन। लेकिन अगर उसका वो भी नहीं, लेट्स सपोज कि वो नहीं और पेशेंट इज नॉट विलिंग टू अंडरगो अ सर्जरी, फिर बाकी सारी जो अदर मैनेजमेंट्स हैं वो भी हम उसको सोच सकते हैं या देख सकते ओके सर। हैं। हाँ, लेकिन जब आप एग्जाम में टेक्निकली जाते हो तो यू नीड टू एक्चुअली डिस्कस ऑल दोज थिंग्स विद द पेशेंट। उसे सिर्फ आपने अपने हिसाब से नहीं कहना कि नहीं जी आपके लिए सिर्फ ये हमने हिस्टेक्टमी ही कर दी। एक्चुअली जब भी डिस्कशन होती है तो टू किस्म की होती है कि अक्सर एग्जामिनर कहेंगे कि जब पेशेंट के लिए ये चीज सुइटेबल नहीं है तो आप ऑप्शन क्यों दे रहे हो उस चीज के, लेकिन जैसे पेसरी जो है, अगर आपके हिसाब से 60 ईयर ओल्ड पेशेंट में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट बेटर जो है वो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी है, तो आपने पेसरी का ऑप्शन मतलब क्यों दे रहे हो उसको? अगर पेशेंट चाहेगी सेकंड ऑप्शन तो हम देंगे ना, अगर रोल प्लेयर हो तो। वो रोल पे रो, लेकिन जब आप इस तरह पॉइंट्स पाँच रहे मैनेजमेंट की, आप जब पॉइंट हो रहे होते हो, जी। आपने सारी हिस्ट्री ले ली कह ली, जब मैनेजमेंट की लेट्स सपोज बात होगी, ट्रीटमेंट की बात आ गई, तो ओके ट्रीटमेंट के अंदर आप पेशेंट्स को इट इज एज अ डॉक्टर, मेरा तो अपना अंदाजा है कि इवन इन आवर प्राइवेट प्रैक्टिस यू गिव देम ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके इट इज, और उन सब के 1 और 2 और 3 के प्रोज एंड कॉन्स आप जरूर पेशेंट से बता देते हो। अब इट्स टोटली अप टू द पेशेंट हु वुड डिसाइड कि जी मैंने तो ये लेना है, इसका ऑप्शन नंबर 1 लेनी है, ऑप्शन नंबर 2 लेनी है, ऑप्शन नंबर 3 कर लेनी है। और ओके इसी सर। तरह इसीलिए ये वाली जो पेशेंट वाली थी जो 60 वाली सारा कुछ आ रहा है, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि प्रीवियस उसने क्या क्या ट्रीटमेंट लिए इस प्रॉब्लम के लिए। शी डिड नॉट कम टू अस विद अ prolapse ऑफ अबाउट लेट्स सपोज के अभी 2 महीने हुए या 3 महीने हुए या फर्स्ट टाइम उसने के लिए, उसको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। 2 साल में क्या उसने कोई ट्रीटमेंट लिया कि नहीं लिया? अगर ट्रीटमेंट लिया तो फिर क्या लिया? लेट्स सपोज कि अगर इसी मरीज के अंदर पेस्ट्री हम रखते हैं और पेस्ट्री कहती है मैंने लिखवाई हुई है और वो पॉप आउट हो गई है, तो दैट वुड नॉट बी माई देन फर्स्ट चॉइस ऑफ गिविंग हर अ पेस्ट्री इन दिस, माई वुड बी अनदर वन। यही मरीज के अंदर अगर एनेस्थीसिया की फिटनेस में बार बार कह रहा हूँ नहीं मिलती, तो फिर हमें अदर ऑप्शंस के लिए उसको डिस्कस करने के लिए जरूरी है। और फिर इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जी एनेस्थीसिया वालों से कि जी कि आप इसको अगर लेस फॉर जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते तो क्या आप, दिस इज वन ऑफ दोज कैंडिडेट जो स्पाइनल में भी हो सकती है, और वो अगर कहें तो जी ये दिस इज गोना बी अ हाई रिस्क, इसमें हमने स्पाइनल में ये करनी है, फिर देन यू गो बैक टू द पेशेंट एंड डिस्कस कीजिए कि ये है, इसके ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये इसके एडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज हैं, देन शी विल देन डिसाइड कि हमने अगला स्टेप क्या करना है। ओके सर, थैंक यू। चलो सर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये बताया गया है कि समथिंग कमिंग आउट ऑफ विजाइना, तो हम क्या एग्जामिनर से पूछेंगे कि मतलब डिग्री ऑफ प्रोलैप्स क्या है, ऑफ कितनी है? कोर्स, जब तक आपके पास इसकी फाइंडिंग नहीं आएंगी, इवन ऑफ दिस नॉट फाइंडिंग, आपका इसका बीएमआई बाकी सारी कफ और ये सारी चीजें नहीं आएंगी, फिर
ही लेट्स सपोज को क्रॉनिक कफ आ जाती है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। मैं इसलिए तो कहता था जब वो स्ट्रक्चर डिस्कशन होती है तो दैट मीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एग्जामिनर ने भी देनी, पास ऑन करनी है। तो फिर आपकी मैनेजमेंट में सबसे पहले सीधा सीधा आ जाता है कि जी पहले तो मैं इसकी अंडरलाइंग जो ये डिजीज है ऑफ कफ है या कोई भी है, ये कॉन्स्टिपेशन है या कफ है, उसको हम ट्रीट करके फिर देन विल प्रोसीड विद दिस आगे सर्जरी के। उसको क्रॉनिक कफ वहीं रहती है और आप उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हो, सर्जरी कर देते हो, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स वो दोबारा शी विल प्रेजेंट विद यू विद द प्रोलैप्स और आप उसकी वो ट्रीट नहीं करते। तो ये तो यही स्ट्रक्चर डिस्कशन, यही मेरी बात समझाने की थी कि आपने कहानी में तो बता दिया। लेट्स सपोज मैं इसमें इसको मीनोपॉजल ब्लीडिंग डाल देता, अगर मैं ब्लीडिंग डाल देता इसमें, लेट्स सपोज ऐड कर देता, तो फिर उसकी मैनेजमेंट के लिए ना फिर इसकी सर्वाइकल अगर और उसके साथ अल्सर नहीं है तो फिर उसमें उसकी सारी मीनोपॉजल इवैल्यूएशन और सर्वाइकल अगर है थिकनिंग तो उसकी अपना पहले बायोप्सी एंड देन वी प्रोसीड विद दैट। अगर मैं इसमें अल्सर ऐड कर देता, अल्सर का उन्होंने थोड़ा सा डिटेल उसको बताया, फिर जी पहले अल्सर की हम ये देखेंगे कि जी उसको हम रिड्यूस करेंगे, उसकी पैकिंग करेंगे, अगर वो हील हो रहा होगा तो वो दैट इज फाइन, अगर वो हील नहीं हो रहा फिर देन प्रॉब्ली शी रिक्वायर्स टू हैव दैट बायोप्सी ऑफ द अल्सर, जिसमें बायोप्सी के अंदर आप पहले अल्सर का पार्ट भी होता है, मार्जिन से लेते हैं और जो नॉर्मल अपना आपका एरिया है सेल्स के वो भी साथ जाता है, ताकि उसको डिफ्रेंशिएट वो कर सकें कि जी कि इसमें मेलिग्नेंसी तो नहीं है। अगर अल्सर के अंदर कोई मेलिग्नेंसी आ जाती है फिर उसकी मैनेजमेंट ज़्यादा होगी। अगर वो सिंपल डिक्यूबिटस अल्सर है तो फिर उसकी पैकिंग, पैकिंग के बाद उसकी हीलिंग एंड देन उसकी ऑफ कोर्स उसके बाद अगर हमने प्लान करना है कि पेस्ट्री डालनी है कि सर्जरी करनी है ऐसे होगा। अगर उसकी रीनल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है इसी में, यूरेटस खींचे हुए हैं और वो रीनल फेलियर में जा रही है, उसके अपना RFT डीरेंज हो रहे हैं, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो उसके मुताबिक भी देन वी हैव टू डिसाइड कि फॉर द टेम्परेरी मेजर हमने यूट्रस को हाउ टू वी कीप दैट यूट्रस इन बाय अवेलेबिलिटी ऑफ। अब यहाँ पे आके बुक्स वाले आ जाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्रीज आ जाती हैं, देयर माइट बी अ स्टेशन जिसमें मे बी जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्रीज के बारे में आपसे पूछा जाए कि अगर ये निकल जाती है तो फिर अगली कौन सी रख सकते हैं। हमने सिर्फ रिंग पेस्ट्री का हमें पता है, हम सिर्फ रिंग पेस्ट्री की बात नहीं करें, हम अगर शेल्फ पेस्ट्रीज भी होती हैं और मल्टीपल्स होती हैं उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। यू कैन नॉट टेल द एग्जामिनर इन द एग्जाम की ये तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इसलिए हमें पता नहीं। उसके लिए फिर वो यू नीड टू हैव दैट एटलीस्ट टाइप ऑफ पेस्ट्रीज उसकी, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्ट्रीज की तस्वीरें रखी हों और रखने के बाद आपसे क्या है उसको आइडेंटिफाई करें और किस किस पेशेंट में ये कहाँ कहाँ हमने रखना है, उसके बाद हम आपको उसको देखें। एक्सक्यूज मी सर, जी सर इन्होंने ना जब मैंने लास्ट टाइम जो एग्जाम दिया था ना उसमें उन्होंने बेसिकली जो क्वेश्चंस जिन एग्जामिनर के पास होते थे ना वो बेसिकली थोड़ा सा गाइड कर देते थे, मतलब यानी उसमें इंस्ट्रक्शन ये दी हुई थी कि यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, और जी जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट हमसे पूछनी होती थी फ्रॉम A to Z, वो उसमें सिर्फ सिंपल ये क्वेश्चन होता था कि मैनेज द पेशेंट, प्रोसीड, मतलब उसमें उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा होता था। और जिसमें उन्होंने पूछने होते थे ना तो उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ मेंशन किया होता था कि लाइक आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। बेटा मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो पहला 1 मिनट है जिसमें आपने सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, यू हैव टू मेक श्योर कि यू रीड देम प्रॉपरली। अगर जी जिस सर। तरह आपने कहा कि जी इसमें लिखा हुआ है कि यू यू आंसर द क्वेश्चंस या यू डू अ डिस्कशन या वट एवर जो भी है, फिर देन अकॉर्डिंगली यू प्रोसीड। इन डॉक्टर साहबा ने जो किया मेरे हिसाब से ठीक नहीं किया, वो ये किया 8 के 7 मैंने कहा जी स्टार्ट, तो उन्होंने पूरी स्टार्ट कर दी। यही चीज इनको स्टार्ट करनी चाहिए थी, अनलेस कंट्री में पहला उनसे सवाल पूछता है कि जी हाँ जी बताएं और कौन से पॉइंट्स आप हिस्ट्री में वुड लाइक टू नो अबाउट दिस पेशेंट बिफोर वी प्रोसीड, फिर हम बिल्कुल दैट इज परफेक्टली फाइन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जरा तसल्ली से सोचना चाहिए कि क्या इसमें क्या होना है। पहले मैंने बोलना है, पहले एग्जामिनर ने बोलना है, वो कई एग्जामिनर होते हैं आप भी चुप करके बैठे रहोगे वो भी चुप करके बैठे रहेंगे और आपकी टाइम चला जाएगा, क्योंकि उसमें मे भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जिस तरह आपने शुरू में कहा कि जी हाउ विल यू मैनेज, आपको वो मिल गया, फिर आप उस मैनेजमेंट से स्टार्ट हो जाओ। सर पैकिंग विथ पॉलीफैक्स करनी है ना, अब तो कुछ और अवेलेबल नहीं है ना।
मल्टीपल चीजें बेटा, वो जो भी आ रही हैं, जो अवेलेबिलिटी है, एक आपने उसके हिसाब से बताना है, लेकिन जो किताब में लिखा हुआ है कि किस चीज से करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इस एग्जाम का सबसे बड़ा ये मसला अब ये आ गया, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो ये चीजें पूछ रहे हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी है उसमें चलते हैं, वो भी पूछ रहे हैं जो अमेरिका में क्या हो रहा है और इंग्लैंड में क्या हो रहा है। क्योंकि जो गाइडलाइंस वगैरह सारी हैं उसमें करके उसमें को जो इफ अवेलेबल तो हम इसी से करेंगे पैकिंग, अगर नहीं है तो जो हमारे पास लोकल अवेलेबल है हम उससे कर लें। सिर्फ ये चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी जो हमने ये किताब, अब जो ये एग्जाम हो गया ये काफी सारा थ्योरी से काफी ज्यादा रिलेट हो गया, लेकिन वो सारी बातें मैं जैसा कह रहा हूँ कि हो सकता है वो आपको एक स्टेशन में सारी पेस्ट्री की तस्वीरें रख के दे दें और कहें जी आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी पेस्ट्री है और किस में यूज की जाती जी सर, ये लास्ट ईयर आया था यही स्टेशन है। हाँ तो वॉल्ट फिर, प्रोलैप्स के साथ। हाँ तो फिर आप उसमें ये तो नहीं कह सकते कि जी हमने तो ये वाली पेस्ट्री भी आज तक नहीं देखी, ये भी नहीं देखी, ये तो अवेलेबल नहीं पाकिस्तान में, हमारे पास तो सिर्फ ये रिंग पेस्ट्री, इसलिए हम ये करें। इस दैट इज वन ऑफ द रीजन, देन अब आपको थोड़ा सा उसके हिसाब से भी देखना जरूरी अस्सलाम वालेकुम सर। है। वालेकुम सर सलाम। सर क्वेश्चन है आपने सर बीच में सिस्टोमेट्री का जिक्र किया, तो हम उसको फिर कैसे कब करवाएंगे? जब पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम्स होंगे तो फिर हम उसको कैसे इंटरप्रेट वगैरह करेंगे? साथ में सर्जरी के साथ हम उसको कैसे लेके चलेंगे फिर बाद में? ठीक है, आइडली स्पीकिंग तो जिसको अगर यूरिनरी सिम्टम्स हैं उसमें वो होनी चाहिए अवेलेबिलिटी, या कम से कम उसमें डेफिनेटली होनी चाहिए जिसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन जीआई एंड एसआई। अगर आप उसमें नहीं डिफरेंशिएट करते थे, उसको डिफरेंशिएट करने का इसलिए एडवांटेज है कि अगर उसको जीआई है और आप सर्जरी कर देते हो तो उसके सिम्टम्स फर्दर एग्रीवेट हो जाएंगे। तो अगर उसको एसआई है और आप उसको सर्जिकल प्रोसीजर कोई नहीं करते तो उसके वो सिम्टम्स ठीक नहीं होंगे। इसलिए जहाँ पे ये हो जाती है वहां पे इन एग्जाम के लिए जो आपको गाइडलाइंस दी हुई है उसके हिसाब से आप जरूर पाओगे कि जी जहाँ पे वो कहते हैं कि जिसको सिम्टम्स है उसकी सिस्टोमेट्री होनी चाहिए, और सिस्टोमेट्री का भी स्टेशन आ सकता है आपको कि जी ये रिपोर्ट आ गई है, आप इसको रीड करके बताएं कि जी के हाउ विल यू प्रोसीड। तो सर या फिर इस जब आ गई जेनरल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस सिस्टोमेट्री पे, तो फिर हम इसकी साथ में सर्जरी मतलब बल्क कार्पो यस, सस्पेंशन भी कर देंगे और इसको भी कर देंगे? यस ऑफ कोर्स, नहीं डिपेंडिंग ऑन, अगर आप सिर्फ वजाइनल से कर रहे हो तो फिर देन इट्स इजियर कि जी आप वजाइनल सेक्टमी के साथ फिर कैली स्टिच लगा देते, उसका सक्सेस रेट भी इज नॉट दैट बैड। अगर आप अब्डोमिनल रूट से कहीं जाते हो तो फिर देन इट्स इम्पोर्टेंट कि लेट्स सपोज किसी की स्टेक्टमी करनी है आपने अब्डोमिनली, तो फिर आप उसको साथ उससे भी कर लेते हो, व्हाट यू कॉल दैट, साथ बर्च कॉर्पस सस्पेंशन कर लेते सर एक क्वेश्चन है, अगर पेशेंट को फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स है और साथ में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, हैं। जी सर इसमें हम बेहतर ऑप्शन किस तरह से थोड़ा सा मैनेजमेंट में बताएंगे कि सबसे उसके लिए क्या बेस्ट है? बेटा, स्ट्रेस। अगेन देखो नहीं, उसमें अगेन डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, एज कितनी है, सिम्टम्स सिर्फ तो आपने दो सर बता दी, सर फर्टिलिटी एज। डिजायर है कि नहीं, तो उस सबको सामने नजर रखते हुए ही देन यू डिसाइड, इट इज नॉट अ वन टाइम थिंग कि जी कि उसको क्या है, अगर उसके सर साथ जैसे तो जी। सर पेशेंट है, मेनोपॉजल पेशेंट है और मतलब उसमें डेफिनेटिव सर्जरी हो सकती है, वीएच प्लस रिपेयर के साथ हम वो कर सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स में हम वीएच करेंगे फिर उसको ऑप्शन देंगे? ये मेरा क्वेश्चन ये। फिर आप सिर्फ वो कर दो, बर्च कर दो। अगर क्योंकि देखो, अगर अगर फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स है और पेशेंट को प्रोलैप्स की सच कंप्लेन नहीं है, फर्स्ट डिग्री में नॉर्मली पेशेंट तो कंप्लेन नहीं करता ना बेटा, वो तो आप जी सर एग्जामिनेशन, ऐसे ही। वो तो आप एग्जामिनेशन पे जाके देख के यू फिगर इट आउट कीजिए कि उसको देयर इज द यूट्रस हैज कम डाउन, उसके अंदर आप सिर्फ रिवर्स करना चाहो तो यू कैन डू दैट, लेकिन अगेन यू विल डिस्कस दिस थिंग विद द पेशेंट कि जी उसकी डिजायर क्या है, शी आपका लेट्स सपोज सऊदी अरेबिया में जो लोग काम करते हैं या जाते हैं, they have one of the biggest issues that के those patients they don't give consent of removing the uterus whatever their social circumstances are। तो इसी में फिर ये then you need to do a discussion with the patient कि जी आप क्या क्या करना चाहते हैं,
आप ये कहोगे पेशेंट को जी कल ये प्रोलैप्स जो है ये बहुत बढ़ जाएगा और फिर इस तरह हो जाएगा, तो फिर हम तब हम करेंगे, या यू वुड लाइक टू हैव इट डन राइट नाउ विद दिस सर्जरी, हम साथ साथ ये करते सर इसमें ये सर ऑप्शन भी दे सकते हैं कि बर्च करके और नीचे से हम पेस्ट्री का ऑप्शन भी दे सकते हैं। बेटा फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स में तो पेस्ट्री की जरूरत है। सर वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसमें अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है तो फिर हम इसको मतलब सिर्फ यही ऑप्शन इसी तरह ही देंगे। Yes, of course. I don't think so. You need to have a pessary for first degree prolapse. जी सर मेरा भी यही पॉइंट था, मैं बस कंफर्म हाँ, करना। सर असल में पेशेंट जो है ना बहुत दफा समथिंग कमिंग आउट ऑफ वेजाइना की कंप्लेन के साथ आती है, लेकिन वो होता सिर्फ सिस्टोसील है, वो यूट्राइन प्रोलैप्स नहीं है। तो उसमें तो सर हम सिर्फ एंटीरियर रिपेयर का ऑप्शन देंगे ना। of course. अगर आपकी वो उसके हिसाब से डायग्नोसिस और अपना एग्जामिनेशन ठीक है तो फिर ऑफ कोर्स। देखो ना, हर सर्जरी जितनी एक्सटेंड होती रहती है उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहती है। यू डोंट वांट टू पुश योर पेशेंट टू दिस अगेन एंड अगेन, then you have to choose, and I think it's just anterior repair is a simple प्रोसीजर जो मतलब है कि डे प्रोसीजर होता है, उसमें आप वो करके चले जाओ रादर देन डूइंग एन स्टेक्टमी कंप्लीट एंड देन उसके साथ खुदा ना खास्ता कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो इतनी आँख आनी स्टार्ट हो जाती। लेकिन ये सारी बातें आप उसे बता दो, पहले डिस्कस करोगे फिर देन यू डिसाइड। इमरान अपना डॉक्टर शनाज की है मैडम की क्लास? नहीं आज सर, है? नहीं सर, है? नहीं सर। नहीं, चलो चलो, अगर आपके और कोई सर क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो मैनचेस्टर रिपेयर हम करते हैं उसमें सर्वाइकल डायलिटेशन के बाद क्यूरेटाज करना जरूरी होता है, क्यों करते हैं? That is only that is one step they added only just कि खुदा ना खास्ता उसमें कोई पैथोलॉजी ना हो तो ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए करते हैं। तो देन दैट अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो यू कैन काइंड ऑफ अवॉइड दैट, लेकिन मैनचेस्टर की उन्होंने स्टेप्स में लिखे हुए। और सर ये स्टैम्प्ड ऑफ सुचर क्या होता है, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है कहीं, बस नाम पढ़ा है, प्लीज बता दें। बेटा ये तो एक अलग सेशन होगा जिसमें वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है वैसे। ये किस में कौन सी बुक में था? ये ऑपरेटिव शॉ जो पुरानी वाली है उसमें बना हुआ है। चलिए ठीक मेरे है पास सर, थैंक अगर यू। वो हाले वो बुक तो थी, मैं देखता हूँ अगर वो हुआ तो मैं उसकी पिक्चर खींच के ना ये इमरान को दे दूंगा, तो वो इमरान मुझे याद करा दे तो जी मैं सर, प्लीज प्लीज सर। मैं वो आपको दिला दूंगा। मेरा ख्याल है ये सामने ही पड़ी है, अगर पड़ी है तो मैं भी निकाल के आपको सर एक और क्वेश्चन है। जी। सर ये जो हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का तो हम कह रहे हैं ना क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, तो उसके लिए हमें बोलना चाहिए कि बोनी और जो क्यूटिप टेस्ट है हमें ये बोलना ही चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल बोलने चाहिए अगर आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट हुआ है और नहीं हुआ। ये तो तब है ना बेटा कि जो डेमोन्स्ट्रेट जब नहीं होता, एक तो विजिबली नजर आ गया, डायग्नोस हो गया, दैट्स इजियर। फर्दर वाले टेस्ट इज डन कि अगर तब नहीं आ रहा तो फिर हम अगला वाला स्टेप क्या करें। ठीक सर। डू यू अंडरस्टैंड कि नहीं? सर ये आपका कहने का मकसद है कि जैसे ब्लैडर फुल है और हमने उसको कॉफ करवाया और उसने यूरिन मतलब उसका लीक नहीं हुआ, देन वी विल गो फॉर द बोनी एंड द क्यूटिप टेस्ट। अगर पेशेंट की हिस्ट्री बड़ी सजेस्टिव है ऑफ दिस, ठीक ठीक है ना, फिर उसमें आप कर ठीक है। सकते। ठीक है सर, थैंक यू। चलो बेटा, नो मोर क्वेश्चंस, फिर हम आई थिंक विल से गुड बाय एंड देन विल सी क्या होगा। जी सर। चलो ठीक। इमरान, ये मैं आपको थोड़ी देर में पिक्चर भिजवाता हूँ, इनको दे देना प्लीज। ठीक हो गया। ओके। थैंक यू सर। ओके।